Hello everyone, this is Vinod Badal, your online tutor. Today I am going to start a new unit, that is Unit 5 of your practice book titled Tenses Part 1. Without any delay, let's move to Worksheet 1. Read the passage given below. Snoopy has an adventure. Snoopy is a lazy dog. He sleeps for more than 12 hours a day. Mrs. Arya scolds him whenever she finds him sleeping. One day Snoopy was dozing in the sunshine when he suddenly saw a cockroach. He got scared and started barking at the insect. The family members ran down to the spot and saw that Snoopy was jumping and barking at something which they could not see. Mr. Arya tried to stop Snoopy, but he did not stop barking. Mrs. Arya warned him that she would not give him dinner. Hearing this, he softened a little. He looked towards Mrs. Arya in a pleading manner and tried to tell her that he was trying to catch a thief. He had done a good deed, but no one understood what he was trying to convey. Nicky caught hold of Snoopy and pulled him in. Read the words or phrases given in bold carefully. Different verbs are in different forms. Scolds, scold में s लग गया तो ये verb का फिफ्थ फॉर्म है, s और es फॉर्म. Was dozing, ing लगा हुआ है, ये verb का फोर्थ फॉर्म हो गया जिसको कि हम ing फॉर्म भी बोलते हैं. Saw, ये सेकंड फॉर्म है. Ran सेकंड फॉर्म. Was jumping फोर्थ फॉर्म ing फॉर्म. Did not stop ये फर्स्ट फॉर्म है. Looked सेकंड फॉर्म. Done is थर्ड फॉर्म हियर. Was trying is फोर्थ फॉर्म. इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें टेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब का जो चार्ट है वो हमें पता होना चाहिए, और जो टेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. तो चलिए पहले हम हेल्पिंग वर्ब चार्ट देख लेते हैं और फिर स्ट्रक्चर देख लेते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन हैव बीन, पास्ट इंडेफिनिट डिड, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर, पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन, फ्यूचर इंडेफिनिट shall will, future continuous shall be will be, future perfect shall have will have, future perfect continuous shall have been will have been. Now look at tense chart. First one is present indefinite. Subject plus V1 और V5. जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो हम V5 का यूज करते हैं. V5 मतलब वर्ब का पांचवा फॉर्म, जिसको कि s और es फॉर्म भी कहा जाता है. मतलब कि अगर वर्ब में s या es लग गया तो उसको हम बोलेंगे वर्ब का पांचवा फॉर्म. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 लगाएंगे और बाकी सभी के साथ V1. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई वर्क, शी वर्क्स. अगर यहाँ पे ही भी होता फिर भी वर्क सी होता. दे वर्क. नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4. आई एम वर्किंग, शी इज वर्किंग, दे आर वर्किंग. प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस
हैज या फिर हैव आ सकता है। उसके बाद फिर आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई हैव वर्कड, शी हैज वर्कड, दे हैव वर्कड। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हैज लगाते हैं, बाकी सभी के साथ हैव लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस V4। I have been working since Monday. She has been working for 2 hours. They have been working since last year. तो जनरली परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर का यूज होता है जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है कब से, तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें ड्यूरेशन का पता होता है तब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको ड्यूरेशन पता है फॉर 2 hours, तो यहाँ पे फॉर लग गया। तो यहाँ पे हो गया सिंस मंडे, क्योंकि मंडे से लेकर अब तक कितना समय हो गया ये हमको पता नहीं है, टाइम कैलकुलेटेड नहीं है, तो वैसे में हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। I worked, she worked, they worked. Past continuous, subject plus was were plus ing form of verb. I was walking, she was walking, they were walking. Past perfect, subject plus had plus third form of verb. I had walked, she had walked, they had walked. Past perfect continuous, subject plus had been plus ing form of verb. I had been working since Monday. She had been working for 2 hours. They had been working since last year. Future indefinite, subject plus shall या फिर will, और साथ में आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जनरली आई और वी के साथ में शैल का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सभी के साथ विल, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आई और वी के साथ भी विल लगा सकते हैं। आई शैल वर्क, शी विल वर्क, दे विल वर्क, अगर हम यहां लिखें आई विल वर्क तो भी सही है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, subject plus shall be, will be plus V4. I shall be working, she will be working, they will be working. Future perfect, subject plus shall have या फिर will have और साथ में third form of verb. I shall have worked, she will have worked, they will have worked. And the last one is future perfect continuous. Subject plus shall have been, will have been plus V4. I shall have been working since Monday. She will have been working for 2 hours. They will have been working since last year. It is very important to keep in mind this tense chart. So I suggest you to take a screenshot here and write down in your copy and learn it properly. Now come to worksheet 2. Carefully read the tense chart given below. अभी देखिए मैंने एक आपको अभी टेंस चार्ट दिखाया था और ये आपके बुक में टेंस चार्ट दिया हुआ है, ये भी वही चीज है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए प्रेजेंट सिंपल जिसको हम इंडेफिनिटिव बोलते हैं, गो गोज, डज गो, डज नॉट गो, वॉक वॉक्स। पास्ट went, did go, did not go, walked. Future will go, shall go, will walk, shall walk. Continuous, am going, is going, are going, am walking, is walking, are walking. Past continuous, was going, was walking, were walking.
Future continuous, shall be going, will be going, shall be working, will be working. Present perfect, has gone, has worked, have worked. Past perfect, had gone, had worked. Future perfect, will have gone, will have worked, shall have worked. Now refer to the tense chart given above and fill in the blanks with appropriate alternatives from those given in the brackets. The first one has been done for you. तो यहाँ देखिए कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं और इन ब्लैंक्स को हमको फिल करना है। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट में, इनमें से किसी एक को चूज करना है जो कि हमारे टेंस के रूल के अकॉर्डिंग सही आएगा, और मुझे लगता है कि आप कर लेंगे। चलिए, पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। आई होप यू हैव डन। चलिए, अब अपने आंसर को आप मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। Worksheet 3. Refer to the tense chart and identify the errors in the following sentences. Underline the errors and rewrite the sentences using the correct forms of the verbs. The first one has been done for you. तो देखिए यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें कुछ ना कुछ एरर है। आपको ऑलरेडी टेंस चार्ट के बारे में पता है, तो टेंस चार्ट को ध्यान में रखते हुए आपको इसमें गलतियों को ढूंढना है और उसको अंडरलाइन कर देना है, फिर उसको करेक्ट कर देना है। देखिए एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, दे आर ईट फूड, और हमने टेंस चार्ट में देखा था कि आर के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, तो यहाँ पे ईट नहीं होगा, यहाँ पे होगा दे आर ईटिंग फूड। तो उसी प्रकार से आपको बाकी भी सॉल्व करना है। आई होप आपका बुक खुला हुआ होगा, तो चलिए उसमें आप पहले सॉल्व कीजिए जल्दी से। वर्कशीट 3 को सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूं। नाउ मैच योर आंसर्स। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। यू मे टेक स्क्रीनशॉट हियर। Worksheet 4. Complete the following tense chart with appropriate forms of the verb give. तो यहां देखिए एक टेंस चार्ट आपको फिल करना है। गिव का जो फॉर्म होता है, गिव, गेव, गिवन, गिविंग और गिव्स, तो ये 5 फॉर्म है गिव का, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको फिल करना है। तो चलिए पहले ट्राई कीजिए अपने से। नाउ चेक योर आंसर। Now move to worksheet 5. Simple tenses. Read the story given below. Write the phrases given in bold in appropriate columns in the format of the tense chart given on page 69. The tortoise has reached the destination. The rabbit is sleeping on the way. The duck left the race in between. The destination is in the direction in which the sun sets. Owl has been clapping continuously since the race started.
The elephant was drinking water when the tortoise finished the race. The sheep fell down, so she couldn't complete the race. The rat kept jumping throughout the race. The tortoise will get an award. The lion will be distributing the awards in 10 minutes. The rabbit will not attend the award distribution ceremony. तो यहाँ पे जितने भी ये बोल्ड वर्ड है ना, इनको आपको इस बॉक्स में सजाना है. सिंपल कौन सा है, कंटिन्यूअस कौन सा है, परफेक्ट कौन सा है. सिंपल है तो प्रेजेंट का सिंपल है कि पास्ट का सिंपल है कि फ्यूचर का सिंपल है. आपको टेंस का चार्ट पता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कीजिए. नाउ मैच योर आंसर. Remember, simple present tense is used in 3 situations. सिंपल प्रेजेंट टेंस 3 सिचुएशंस में यूज होता है. जो पहला है वो है डेली रूटीन. जब हम डेली रूटीन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. दूसरा, हैबिचुअल एक्शंस और हॉबीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं. और तीसरा, जब हम यूनिवर्सल एंड फैक्चुअल एक्शंस की बात करते हैं, ऐसा एक्शन जो कि बिल्कुल सत्य है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वैसे कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. कंफ्यूज नहीं करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ही होता है. लुक एट एग्जाम्पल. ही गोज, दे गो, वी ईट, द अर्थ रिवॉल्व्स. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. दे फाइट, शी रन्स, डू यू नो, साहिल गिव्स, शी डज नॉट गो. Now come to worksheet 6. Taking clues from the unit hobbies of my English reader, list a few things that you and your classmates do in your leisure time. The first one has been done for you. तो आप लीजर टाइम में क्या करते हैं और आपके फ्रेंड्स क्या करते हैं, उसको आपको यहाँ लिखना है. देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है कि आई पेंट क्ले टॉयज. उसी प्रकार से आपको अपने दोस्तों के बारे में भी लिखना है. आप लिख लेंगे तो सही बात है. जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं और नहीं लिख पाते हैं तो उनके लिए मैंने लिख भी रखा है. Now remember, singular subjects except I and you carry s or es with the verb. तो मैंने आपको टेंस चार्ट के टाइम पे बताया था कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है उसमें जो वर्ब होता है उसमें एस और ईएस लगाते हैं. तो यहाँ भी इसका मतलब वही है. वर्कशीट 7. डिस्क्राइब योर डेली रूटीन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स गिवन अबव. तो यहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के इस्तेमाल से आपको यहाँ पे अपना डेली रूटीन लिखना है. इन पिक्चर्स को आपको ध्यान में रखना है. चलिए ट्राई कीजिए. I get up at 6 o'clock in the morning. I take a bath and get ready for school. I leave for school at 7:30. After returning back from school, I take lunch at 2 o'clock. I take rest for an hour and then watch TV at 4:30. I go to play football with my friends. In the evening, I study for 3 hours. After having dinner at 9:30, I go to bed. यूनिवर्सल, हैबिचुअल एंड फैक्चुअल एक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा. Now come to worksheet 8. Look at the following pictures and fill in the blanks. The first has been done for you. The river falls from the mountain. पिक्चर को देख के यहाँ पे फॉल्स लगा दिया गया. यहाँ देखिए, पिक्चर को देखिए और इसको फिल कीजिए.
चलिए इसको पहले कीजिए आप। द सन राइजेज इन द ईस्ट, डॉग्स जनरली bark at the strangers, children play with toys. The stars shines at night, the rose smells sweet. यहाँ पे देखिए रिमेंबर करना है। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस डू एंड डज आर यूज्ड टू फॉर्म इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। लुक एट एग्जाम्पल, ही डज नॉट, आई डू नॉट, डज रवि, डज शी, डू यू, डू आंट एंड अंकल, शी डज नॉट, दे डू नॉट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में डज का इस्तेमाल होगा, बाकी सब जगह पे डू का। इससे आगे हम अब इसके सेकंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।